Assalamu alaikum, you all dear students. So yesterday we were talking about the significance of the branches. The SLOs still continue because we are discussing the significance of or importance of each and every branch. So I think we were discussing about these branches. We have discussed morphology, anatomy, physiology, embryology, taxonomy, and today we are going to discuss that is a cell biology. So cell biology, you know, study of cell. So actually students are still want to inside the class. So beta, cell biology, make sure that we are talking about the significance of cell biology or the first significance, the study of biology, study of structures. Cell biology, study of structures and functions of cells. We have already discussed in detail the definition of the cell biology, and cell organelles is called cell biology. Yani study of structures and functions of cells, all types of cells and its organelles. And you know organelles are the very small parts or constituent of सेल. सो सेल ऑर्गेनेल उसकी स्टडी करना, उनके फंक्शन को स्टडी करना, दिस इज नोन एज सेल बायोलॉजी. Cell biology also deals with the study of cell division, means how they divide and when they divide, okay, and which type of environment they need during the cell division or during its division. So study of cells, its structure, its function, its small parts, that is cell biology. It helps it helps to differentiate the all types of the cells regarding their functions, structures, organisms, and inheritance, evolution. यानी सेल बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो जाहिर है हम सेल की डिस्कस करते हैं, तो उनकी सिग्निफिकेंस एक तो यह भी है कि we usually can differentiate with the help of cell biology. We can differentiate all types of the cells, cells, the different types of the cells found in the plants body, different types of the cells are found in animals body, different types of the cells in blood, even different types of the cells are found in central nervous system. So there are the different types of the cells found in each and every organism. So even plants and animals, okay. So these are the different types of the cells जिसके मुतालिक हमें ये सेल बायोलॉजी बताती है या सेल बायोलॉजी की ब्रांच है वो डिस्कस हम इसमें करते हैं. आफ्टर ऑल एन इनहेरिटेंस यानी which type of material of the cell taking part in inheritance, or which type or which part of the cells take part to transfer the genetic material, transfer the properties from one generation to another generation, or from parents to offspring. This this actually we study in the cell biology, और सेल बायोलॉजी की मदद से हम ये लगा सकते हैं बता. अच्छा, और एवोल्यूशन, जिन सेल्स के मुतालिक पढ़ रहे हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं, क्या उनका कोई
एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड भी है। क्या ये जो सेल्स हैं पहले इनमें किस स्ट्रक्चर्स के थे, अब किस स्ट्रक्चर के हैं, या इज देयर इज एनी लिटिल और ह्यूज डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। फॉर सपोज जब ये दुनिया वजूद में नहीं आई थी तो पहले लाइफ जो हमारी कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन में कि लाइफ अराइज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, उसके बाद मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनका जेनेटिक मटेरियल बना, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल एंड देन सेल इज फॉर्म। सो दिस इज व्हाट the cell biology. The last point of this slide of cell biology, that is, it provides information of all types of cell, as prokaryotes, eukaryotic cells, organisms, unicellular organism as well as multicellular organisms. यानी सेल बायोलॉजी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन सब टाइप जो सेल्स होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस कैरियन मींस न्यूक्लियस, यानी वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी नहीं होते जिसको हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपार्टस है, ये उनमें नहीं होते, किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरिया का जो सेल है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। And other is eukaryotic, and this eukaryotic cell, it is U means true, karyon means nucleus, those cells which possess the true nucleus, those cells which possess the true nucleus are the complete cells, that is known as eukaryotic cells or eukaryotic organisms. अब eukaryotic cell, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सब क्या है? जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एस वी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज़ वी possess the eukaryotic cells, we don't have prokaryotic cell. Make sure कि prokaryotic cells are only found in unicellular organisms, ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ओके, इनकम्प्लीट सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। सेल बायोलॉजी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हमें बताती है, उनके मुतालिक भी इंफॉर्मेशन हमें देती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एस बी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हायर प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। So there are the different types of the multicellular eukaryotic. Okay, I hope cell biology or significance of cell biology is clear. So let me collect one or two questions from students. So Isa, you want to ask something? यस सर, वो जो था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वो थोड़ा सा बताएं, और जो आपकी वॉइस है ना वो थोड़ी सी कम आ रही है, इसलिए थोड़ा जोर से बोलें बस। Okay, right. So beta, prokaryotic and eukaryotic, these are two types of the cells, major two types of the cells. On the basis of the structure, prokaryotic are those cells which do not have the complete nucleus. Okay, is bacterial cell. And eukaryotic cells are those cells which possess complete nucleus, are the complete cell, that is called as a eukaryotic cell, and we fall in the category of eukaryotic cell. हमारी बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल है। हायर एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर कौन से यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इसीलिए हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया possess प्रोकैरियोटिक सेल, इसीलिए हम उसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके,
So these are the two types of the cells. इनके मुतालिक भी हमें सेल बायोलॉजी जो है वो आगाह करती है. ओके ओके बेटा. और आफ्टर ऑल another that is अच्छा इफ़त क्या पूछना चाह रही हैं आप? सर आप हाँ बेटा. आसिम. यस सर. जी. सर मुंहिंजो क्वेश्चन इहो हुयो त जेको तव्हां इनहेरिटेंस वारो चयो उहो थोरो रिपीट त कञा. इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस जो मतलब है भाई है द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है. ओके सर. मायदा. बेटा. सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें फुल न्यूक्लियस नहीं होता, इसका मतलब होता ही नहीं या फिर हाफ होता है? नहीं, हाफ कैसे उनमें होगा सर? उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मटेरियल होता है. इट हैज न्यूक्लियर मटेरियल बट नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और यही सबब है जो भी ऑर्गेनेल है जिनके पास मेम्ब्रेन है वो नहीं होते. अगर मेम्ब्रेन नहीं है फिर तो वो नहीं हो पाएगा ना वहाँ पे. नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूक्लिक एसिड नहीं है, न्यूक्लिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है. वो तो है. अगर वो नहीं होगा तो सेल ही नहीं होगा. हाँ जी. ओके सर. Okay. Okay, beta. After all, we are moving to another branch that is histology. Okay, beta. Histology में हम क्या पढ़ते हैं कि histology actually it is the microscopic study of the tissues. Microscopic study of tissues and cells used in understanding the pathogenesis and diagnosis of various diseases. क्यों पढ़ते हैं हम हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी इट मींस सिंपल स्टडी ऑफ द टिश्यूज. क्यों करते हैं स्टडी टिश्यूज की? सो दैट वी फैमिलियर फ्रॉम पैथोजेनेसिस. पैथो मींस डिजीज, जेनेसिस मींस टू प्रोड्यूस और इंक्रीज. यानी जो डिजीज हो रही हैं उनके मुतालिक, जो टिश्यूज लेवल तक डिजीज हैं उनके मुतालिक पढ़ना, या फिर डिजीज को डायग्नोस करना. इसीलिए हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी की स्टडी करते हैं. एंड अदर पॉइंट which shows the significance of histology, it provides information regarding different types of the tissues, their sampling, staining and identification. I repeat, it provides information regarding different types of tissues, their sampling, staining and identification. क्या मतलब है इसका बेटा? यानी पहली बात तो हम मुख्तलिफ टिश्यूज के मतलब इसमें पढ़ते हैं. नर्वस टिश्यूज, मसल टिश्यूज. ओके, these are the plant tissues as parenchyma, sclerenchyma, xylem, phloem. ये क्या है? टाइप्स हैं टिश्यूज की, इसके मुतालिक पढ़ना. दूसरा इनकी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग करना. हम चाह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ पैरेंकाइमा के कोई एक सैंपल लेकर आते हैं और उसको स्टडी करते हैं. और दूसरा एक हायर प्लांट से, दूसरे लोअर प्लांट से, और दूसरे टिश्यूज हैं एनिमल से. एनिमल में ह्यूमन बींग्स के, कुछ काउस के, कुछ गोट के हम सैंपलिंग कलेक्ट कर रहे हैं. क्यों? सो दैट वी कैन स्टडी द डिफरेंट टाइप्स, देयर स्ट्रक्चर्स. हम सैंपल करते हैं और उसके बाद उनकी स्ट्रक्चर करते हैं. बिकॉज ईच एंड एवरी टिश्यू may have the or might have the different structures. और दूसरा मैंने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया स्टेनिंग. स्टेनिंग बेटा का मतलब क्या है? कलर करना. यू नो, कभी कभार हम बायोलॉजी लैब में स्लाइड्स बना रहे होते हैं, पोटैटो का पीस लिया या ऑनियन का पीस लिया,
उनको कट करके उसको हमने माउंटिंग की कवर स्लिप की मदद से, स्लाइडिंग की मदद से, उनके टिश्यूज अलग करके स्लाइड्स पर रखा और देन हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप पर, थ्रू डिजिटल माइक्रोस्कोप, थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके लिए लेकिन हम क्या करते हैं, कलर देते हैं। स्टेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द कलर टू दैट स्लाइड्स ऑफ द टिश्यूज। क्यों देते हैं? सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द टिश्यूज स्ट्रक्चर। स्टेनिंग का मतलब है कलर करना, यानी ऐसी स्लाइड्स बनाना, ऐसे सैंपल करके कलेक्ट करना टिश्यूज और स्लाइड पर रखना और उसको कलर देना एंड देन ऑब्जर्व। ओके, उसके बाद ऑब्जर्व करना। सो ये क्या है? दिस इंफॉर्मेशन वी यूजुअली स्टडीड इन हिस्टोलॉजी। ओके, and after all, the point number 3 in this slide of histology, histology is used in number of professional fields. ये professional fields में कहते हैं कैसे? I am telling you, from lab analysts to medical professionals. ये professionally भी histology जो है वो use करते हैं. For suppose you have seen the different slides, prepared slides are permanent slides in biology lab in public school sector. यहाँ पर आप लोगों ने स्कूल में, मैंने कुछ आप लोगों को, कुछ शायद सबको यहाँ 1-2 क्लास रह गया होगा, उनको मैंने एक प्रैक्टिकल करवाया था। यहाँ हमने स्लाइड्स ऑब्जर्व की थी मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो परमानेंट स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टिश्यूज की भी स्लाइड्स होते हैं। वो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, ये स्लाइड्स बनाते हैं, permanent slides, and then they actually वो जो है मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, बेच देते हैं। तो ये जो हम लैब्स में आप लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं स्लाइड्स, वो वहीं से साइंटिफिक स्टोर से हम परचेज कर रहे होते। लेकिन वो कहाँ से आती? वो प्रोफेशनल्स जो हिस्टोलॉजिस्ट हैं या जो हिस्टोलॉजी का इंफॉर्मेशन रखते हैं, या आप जैसे स्टूडेंट्स पार्क टाइम में हिस्टोलॉजी का पता है, वो स्लाइड बनाना जानते हैं, तो दे गो फॉर दिस प्रोफेशन एज अ साइड प्रोफेशन, और वो स्लाइड्स बनाते हैं एंड देन वो बेच देते हैं मार्केट में, एंड वी परचेज, आर डिफरेंट पीपल परचेज फ्रॉम द मार्केट दोज दे नीड फॉर द पर्पस ऑफ द स्टडी। ठीक है, और मेडिकल प्रोफेशन में क्या है? मेडिकल में डॉक्टर्स या फिर जो रिसर्चर्स होते हैं, वो टिश्यूज की जो स्टडी करते हैं। फॉर सपोज नाउअडेज देयर इज अ पेंडेमिक, कोविड-19 कोरोना वायरस है आजकल, और कोरोना वायरस के अभी तक कोई भी ऐसी जो है वो मेडिसिन या ट्रीटमेंट नहीं आया, नहीं वैक्सीन आई है। तो अभी तक वो प्रोफेशनल या साइंटिस्ट जो है, रिसर्चर्स जो है मेडिकल फील्ड में, वो स्टडी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्टडी ऐसे कर रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, पहले उन्होंने वायरस की स्टडी की, उसके बाद वो अप्लाई करेंगे टिश्यूज पर, ऑर्गेनिजम्स पर, और फिर वो ऑर्गेनिज्म जब अप्लाई करते हैं तो उनकी टिश्यूज की स्टडी करते हैं। इफ देयर इज एनी चेंज इन देयर टिश्यूज, इफ देयर इज एनी चेंज, पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज इन देयर टिश्यूज और ऑर्गन्स, तो हिस्टोलॉजिकली वो स्टडी करते हैं। दिस इज the significance. There are the many significance or importances of the histology. So एक करंट हवाले से या करंट इश्यूज के हवाले से ये भी जो है वो एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है बेटा, उसके आफ्टर ऑल another point, histologists are also use the law enforcement agencies to help solve crimes. See, यहाँ पर क्या है कि फोरेंसिक लैब्स होते हैं, फोरेंसिक लैब होते हैं। पाकिस्तान में अभी तक तो सिर्फ लाहौर में है, फोरेंसिक लैब्स होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, या फिर कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वहां पर आज़ा बिल्कुल बिखरे पड़े हैं, तो ये हिस्टोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे कलेक्ट द टिश्यूज फ्रॉम दैट प्लेस एंड ऑब्जर्व इट on the basis of DNA
ऑब्जर्व इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टिश्यूज स्ट्रक्चर। टिश्यूज किसके बने होते हैं? सेल्स के। तो अगर उसको एक पीस टिश्यूज का या सेल्स का भी हाथ लग गया, so that they can solve that crime, कि इनकी लिंक क्या है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो थ्रू फोरेंसिक लैब्स तो कैसे सॉल्व उनको क्राइम को जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे फ्यू डेज बैक और 1 वीक बैक एक अटैक हुआ था कराची स्टॉक एक्सचेंज में। तो वहां पर जो टेररिस्ट है, अकॉर्डिंग टू मीडिया, वो टेररिस्ट जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको, पुलिस ने जो है वो किल किया। तो आफ्टर ऑल दे वांटेड टू फाउंड द लिंक। सर्टेनली अगर उनके पास कोई और डेटा नहीं होगी, सीएनएसई नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? हिस्टोलॉजिस्ट से हेल्प लेंगे और जो दूसरे फोरेंसिक टेक्नीशियंस हैं उनसे हेल्प लेंगे, so that they can collect the any cell or tissue and observe them. Okay, the last point of this slide, the significance of histology, that technicians get to process samples and create slides and do the lab work involved in staining and visualization or visualizing structure। तो वही है जो मैंने पहले ही बताया कि वो लैब में काम करते हैं, स्टेनिंग उसको कलर करते हैं ताकि हमें उन टिश्यूज के मुतालिक फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। आई होप इसके मुतालिक ये क्लियर होगा। लेट मी क्लियर दिस। अच्छा बेटा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की ये जो मैंने पहली स्लाइड्स में ये तकरीबन जो मैंने बताए हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वी आर लेफ्ट विद 10 minutes of this meeting on Zoom, so let me clear at least histology. After all, you may ask the question. Okay beta, another slide. Many medical technology companies, pharmaceutical companies and other companies required to test their products need to train histologist। हिस्टोलॉजिस्ट को ट्रेन करते हैं और फिर वो क्या करते हैं? अदर कंपनीज रिक्वायर्ड द टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स। वो अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं, उस मेडिसिन को टेस्ट करते हैं। भाई देयर आर द मेनी मेडिसिन्स अवेलेबल इन द मार्केट, यू कुड सी द डिफरेंट मेडिसिन। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी हिस्टोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, तो वो अपनी प्रोडक्ट को फिर से तजुर्बा करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको जांचने के लिए फिर वो क्या करते हैं? टिश्यूज पर उनको अप्लाई करते हैं। एंड सो फॉर दिस पर्पस दे नीड हिस्टोलॉजिस्ट। नंबर 2 पॉइंट्स in understanding what to look for in normal tissues, a histologist can diagnose and theorize about why the product would create a specific reaction in tissue. Yani after understanding, after observing those tissues and medicines and applying the medicine on those tissues, histologist जो है वो theorized कर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, डेटा करेंगे भाई क्यों ये रिएक्शन कर रही है मेडिसिन उन टिश्यूज पर और उसको क्या और चेंज करना है। तो that is told by the histologist. After all, the histology of different tissues can be used in identify unknown tissues। यानी देखें ये पॉइंट्स, हर एक पॉइंट एक दूसरी पॉइंट से मिल रही है। यानी हिस्टोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट टिश्यूज को यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अननोन टिश्यूज के साथ मैच करते हैं, जैसे मैंने कहा कि क्राइम में करते हैं। प्रोवाइड क्लूज टू फंक्शंस ऑफ टिश्यूज और सेल्स, उन टिश्यूज और सेल्स के आपस में जो एक जैसे फंक्शन होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, और इवन आइडेंटिफाई डिजीज इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल्स में कौन सी टाइप्स ऑफ डिजीजेस हैं वो भी हिस्टोलॉजी के थ्रू हमें पता चल रहा होता है।
Acha, let me now collect the questions. I think 8 people are there who have raised their hands. So ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अलीजा जुल्फकार, क्या आप पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर हिस्टोलॉजी में जो आपने मेडिकल प्रोफेशनल वाला बताया ना, वो मुझे समझ नहीं आया। बेटा मेडिकल प्रोफेशनल से मुराद ये है कि मेडिकल प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी अभी आप देखें आजकल एक डिजीज है कोरोना, ओके, वायरस की पैंडेमिक डिजीज है, और इसके लिए जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो मेडिसिन इसके लिए बना रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनको हिस्टोलॉजिस्ट की जरूरत होगी, क्योंकि उन टिश्यूज पर वो अप्लाई करेंगे मेडिसिन को। ठीक है, सर टिश्यूज पर क्यों? टिश्यूज पर क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम मेडिसिन खाते हैं, कहाँ जाती है वो? हमारे स्टमक में। स्टमक के बाद कहाँ जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब करता है, एंड आफ्टर ऑल वो कहाँ पर? ब्लड में और टिश्यूज लेवल तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि डिजीजेस जो होती हैं, मैनी डिजीजेस आर रिलेटेड विद द टिश्यूज। ठीक है, अगर टिश्यूज लेवल तक डिजीज जो है वो हम उनको सही कर पाएंगे, फिर वी कैन कंट्रोल एनी डिजीज। यू नो पीसीआर, डीएनए की हम कहते हैं, हेपेटाइटिस जो है उसकी पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी डीएनए लेवल तक, सेल लेवल तक हम जांचते हैं कि कहाँ वहाँ पर वायरस तो नहीं है, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो सेल लेवल तक, टिश्यूज लेवल तक डैमेज करते हैं, तो इसीलिए टिश्यूज पर ही अप्लाई किया जाता है। और सर ये जो हिस्टोलॉजी के जो लास्ट और सेकंड लास्ट पॉइंट है, ये भी समझाएं। अच्छा, मैं ये बताता हूँ, अभी आपका ये सवाल मैंने एक पूरा कर दिया। आफ्टर ऑल आई एम गिविंग यू आंसर ऑफ रिमेनिंग, सर बिकॉज वी आर दीजिएगा, लेफ्ट, आप आंसर नहीं करते थे। we are left with the 5 minutes. Okay. After all, Riazullah, you want to ask something? यस सर। हाँ बेटा। सर मैं ये पूछना था कि सर आपने लैब एनालिसिस्ट का मतलब क्या बताया? लैब एनालिस्ट जो लैब में काम करते हैं या लैब में इश्यूज की एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है। और सर आपने लॉ एनफोर्समेंट का मतलब नहीं बताया। लॉ एनफोर्समेंट मतलब जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होते हैं, जैसे रेंजर्स है, पुलिस है, ये जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है। ओके, और फोरेंसिक जो साइंटिस्ट होते हैं ये। ठीक है बेटा। सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मतलब है ये जो दवाइयाँ मेडिसिन बनाती हैं, वो कंपनी जो मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन बनाती हैं। ठीक है सर किस टाइप के डिजीज का? सबका भाई, आप पेनाडोल खाते हैं, आप दूसरे जो है वो एंटीबायोटिक यूज कर रहे होते हैं, नहीं करते कभी किए? तो पेंडेमिक डिजीज हो गया जैसे, या कोई अदर डिजीज हो गए सर, हर डिजीज के, सब डिजीज के बेटा। ओके सर। और सर ये उसके बाद अच्छा आरती, आप पूछना चाह रहे हैं बेटा कुछ? अच्छा आरती, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, उसके बाद है गफ्फार। हाँ बेटा, आस्क इफ यू वांट। हेलो जी सर, आवाज अचे? जी बाबा, पूछी वठो जल्दी, टाइम ना है। जी सर, वो माखे सैम्पलिंग जे बारे में थोड़ो पुछणो हुयो, ता वो सैम्पलिंग समझायो जो थोड़ो। मतलब बाबा इहो आहे, जेकॾहिं मां अब्दुल गफ़ार खे चवां त हिकिड़ी असां दवा ठाही आहे कोरोना जे ख़िलाफ़, ठीकु आहे, हाणे असां हुनखे टेस्ट करणु था चाहियूं ऑर्गेनिज़म ते, ज़ाहिर आहे पहिरियों एनिमल्स ते थींदो, ऐं उन एनिमल्स कलेक्ट कंदासीं, ऐं उन एनिमल्स जा ऐं ह्यूमन्स जा टिश्यूज़ कलेक्ट कंदासीं। ठीकु आहे, त तव्हां के बि टिश्यूज़ उन जा कलेक्ट, स्किन टिश्यूज़ या ॿिया कुझु उन जा कलेक्ट कंदासीं, त उहे जेके टिश्यूज़ आहिनि मुख़्तलिफ़ एनिमल्स जा इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जा, उहे कलेक्ट करे असां उन ते मेडिसिन जेकॾहिं अप्लाई कंदासीं त इनखे छा चवंदासीं असां? सैम्पलिंग। ठीकु आहे। अच्छा माहिदा, हाँ बेटा। सर जो आपने बताया कि अगर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो वो लोग वहाँ से टिश्यू लेकर जाते हैं, तो उनकी सॉरी आपकी आवाज कट गई, सवाल क्लियर नहीं हुआ।
जी सर, अगर कहीं पे बम ब्लास्ट हो रहा है तो हम्म, वहां से जो हिस्टोरियन वो वहां से टीचर लेकर जाते हैं, मतलब जी, उन ह्यूमन के जो हम्म, इंजर हुए हुए होते हैं, हम्म। तो उनका क्या करते हैं वो? बेटा उनसे उनके लिए जरूरी नहीं कि हिस्टोलॉजिस्ट हो, लेकिन दे नीड द हेल्प ऑफ हिस्टोलॉजिस्ट। और यहाँ टिश्यूज लेना भी एक हिस्टोलॉजी वही हमें बताती है। तो उन टिश्यूज सैंपल कलेक्ट करते हैं और उन्हीं में से सेल लेते हैं, और सेल एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनसे डीएनए अलग करते हैं, और डीएनए वो मैच कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास जो रिकॉर्ड होता है पहले क्रिमिनल्स का, उनसे वो मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर उनको जो जहाँ पर शक होता है उनकी डीएनए से मैच कर रहे होते, जिससे वो मिल गया तो पता चल जाएगा भाई वो जो क्रिमिनल है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, और वो क्रिमिनल क्यों बना है, और वो मतलब कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इस तरीके से फोरेंसिक जो माहिर होते हैं वो ये जांचते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, उसके बाद है उम्मे लेलफ। हाँ बेटा। सर मुझे ये पूछना था, जैसे वो जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं, जी, फिर उनके जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा जो होता है उनका, जो मतलब जिन्होंने रिकवर कर लिया होता है, वो ट्रांसफर जैसे करते हैं, तो वो भी हिस्टोलॉजिस्ट करते हैं या फिर जैसे ब्लड देते हैं एक नहीं दूसरे बेटा, को ऐसे उसके कर देते हैं? उसके लिए वो हेमाटोलॉजिस्ट है। ब्लड की स्टडी को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके लिए हेमाटोलॉजी है, जी और सर। वो हेमाटोलॉजिस्ट का काम है। अच्छा बेटा, जनरल इन्फॉर्मेशन सबके लिए ये है कि अभी कुछ टाइम के बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, हम फिर से ज्वाइन नहीं कर रहे। ठीक है, और ये जब जैसे ही खत्म होगी यू कैन ज्वाइन इन अदर क्लास। ठीक है, जब तक किसी और का ओके। वजीउद्दीन, यू वांट टू आस्क समथिंग?